दिस इज़ द फेज़ 2, एन एक्सटेंशन ऑफ द फेज़ 1, जहाँ पे हमने चैप्टर रीडिंग, मार्किंग, पूरी एक्सप्लेनेशन और एनोटेशन अलॉन्ग विद डिस्कशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स किए थे in full detail for the chapter on the face of it. Let's proceed. So we are proceeding now. Lord, boy, you've got 2 arms, 2 legs, and eyes and ears, and you've got a tongue and a brain. You'll get on the way you want, like all the rest. And if you choose, set your mind to it, you could get on better than all the rest. How? डैडी को पता ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे कर सकता है. Same way as I do. Do you have any friends? Hundreds. But you live by yourself in that house. It's a big house too. Friends everywhere. People come in. Everyone knows me. The gate is always open. They come and sit here, in the front of the fire in the winter. Kids come for apples and pears and for toffee. I make toffee with honey. Anybody comes. So have you. But I am not a friend. Certainly you are. So far as I am concerned, what have you done to make me think you are not? You don't know me. You don't know where I come from. Or even what my name is. Mr. Lamb का कैरेक्टर एक philanthropist जैसा हमें दिखता है. He has, we have to learn from him the value of being open-minded. कोई इंसान किसी से कुछ ले जा नहीं सकता. हम लोग बहुत सोचते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा वो, मुझे लेगी तो मैं क्या करूँगी, या अगर आपके पास कुछ रहना है तो वो कैसे भी रहेगा, और अगर आपके पास कुछ नहीं रहना तो वो कैसे भी जाएगा. ठीक है, आई डोंट मीन दैट यू हैव टू बी अ फूल, बट देन डेफिनेटली यू डू नॉट हैव टू बी सो मटेरियलिस्टिक कि आप इन चीज़ों का स्ट्रेस लेकर ही बैठ जाए. हम देखते हैं कि मिस्टर लैम्ब इज ओपन टू द वर्ल्ड, ही वेलकम्स एवरीवन, एंड व्हेन यू आर सो ओपन माइंडेड, there's a bounty of happiness that you secure for yourself. So Daddy says, you don't know me, you don't know where I come from, or even what my name is. Mr. Lamb इस बात का बहुत अच्छा जवाब देते हैं. He says, why should that signify? Do I have to write your particulars and put them in a filling box before you can be a friend? क्या ये details ज़रूरी हैं? I suppose not. No. You could tell me your name if you choose, and if you don't, if you didn't, Derry. Only it's Derek, but I hate that, Derry. If I'm your friend, you don't have to be mine. I choose that. He says, if I'm your friend, you don't have to be mine. I choose that. मतलब कहते हैं कि ज़बरदस्ती नहीं है. Certainly. अब यहाँ पे क्या हम देखते हैं, डेरिक ऑप्टिमिज्म. डेरी बोलता है वो चेंज हो चुका है. कहता है अगर मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, ज़रूरी नहीं कि तुम भी मेरे दोस्त बनो, मुझको इससे कोई इशू नहीं. I might never come here again, you might never see me again, and then I couldn't still be a friend. हो सकता है मैं अपनी दोस्ती निभा ना पाऊँ. Why not? How could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they're friends. Doesn't mean they're enemies either, does it? No, they are just nothing. People, that's all. People are never just nothing. Never. There are some people I hate. अब कुछ लोग हैं ही ऐसे. डेरी उनको हेट करता है, और मिस्टर लैम कहते हैं कभी ऐसा ना सोचो कि पीपल आर नथिंग. हर इंसान की वैल्यू समझो. दैट वुड डू यू. देयर आर पीपल आई हेट, और मिस्टर लैम कहते हैं दैट वुड डू यू मोर हार्म दैन एनी बॉटल ऑफ एसिड. एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, बट नेगेटिविटी बर्न्स यू इनसाइड आउट. इफ यू स्टार्ट हेटिंग समवन, you are going to be harmed more. Hatred does more harm to the hater. There are so many examples I could have quoted right now from my personal life also. Everyone comes across this state when, for some reason, people are jealous, or maybe for some reason they would express that they hate you. They'll create hurdles आपके रास्ते में, कोई ना कोई अड़चन लाएंगे, आपको किसी ना किसी तरह से दबाने की कोशिश करेंगे, किसी ना किसी तरह से आपको कुछ ऐसा करेंगे कि आप अपना काम अच्छा ना कर पाओ, या आप जो कर रहे हो, अगर आपसे लोग खुश हैं तो वो लोग खुश ना रह पाएँ. कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे. लेकिन आप अगर स्माइल करते रहो, हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, तो जो आपको हेट करने वाले ऐसे लोग हैं वो खुद ही अपनी हेट्रेड में जल जाते हैं. आई हैव सीन दैट. छोटी छोटी बातों के लिए फ़िक्र नहीं करते. हमेशा ये याद रखिए कि दुनिया में
हम अकेले आए ना, हम यहाँ से वी कैन नॉट टेक एनी मटीरियल्स विद अस। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई रिलेशनशिप्स में लॉस हो गया, none of these things is going to go with you. What is going to go with you is the peace that you earn in this life. अपने आप को शांत और खुश रखना सीखो। अगर आप अपने आप को खुश और शांत रखना सीख लेते हो, यू विल अटेन अ मेंटल बैलेंस। इसके लिए आपको चाहे मेडिटेशन करनी पड़े, सेल्फ टॉक करनी पड़े, कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुनना पड़े, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड एंड आई एम टेलिंग यू, anybody who's surviving at this point of time in the world is very 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 lucky. Internet is affordable, people are connecting with each other so much that you have the best resources available on the net. Find out your ways, find out the ideas, find out the methods to console your heart. अगर आपने अपने दिल को टेम कर लिया, कंट्रोल कर लिया, आपके दिल में पीस है, भगवान की ब्लेसिंग्स इतनी होंगी, आप भगवान को नहीं मानते, पॉजिटिविटी आपको यूनिवर्स में से ही इतनी आएगी, आपको हेट करने वाले खुद ही जल भून जाएंगे, आपके रास्ते बदल जाएंगे, नए रास्ते निकल आएंगे। आप जहाँ जाओगे उन रास्तों में आपको मुड़ के, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि जिन्होंने आपको हेट किया है, जो आपके हेटर्स हैं, आप उनको मुड़ के देख भी पाओ कि वो कहाँ रह गए और आप कहाँ निकल आए। सो लाइफ इज़, यू नो, one way leads on to the other. It's only you. If you want to remain stuck on one way, on one road, you'll remain there forever. People are going to hate you because you are the one who's constantly sharpening your axe, who's constantly, practicing and improving. और अगर आप एक इम्प्रूवमेंट मोड में हो, आपको लोग हेट करेंगे, आप, क्योंकि लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट के मोड पे हो और उनकी इस हेट्रेड ने ही आपको आगे पुश देना है, सो हेट्रेड डज मोर हार्म टू द हेटर। क्योंकि जो इंसान हेट हुआ है, जो विक्टिमाइज होता है, उसको तो, अगर उसका मेंटल बैलेंस ठीक है, वो तो इसी को ड्राइविंग फोर्स बना के एक रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाएगा। आई विल प्रोसीड। सो ही सेज it will do more harm than any bottle of acid. Acid only burns your face. Dairy only? Like a bomb only blew up my leg. There's worse that can happen. You can burn yourself away inside. After I would come home, one person said, he would have been better off stopping in here. In the hospital, he would be better off with the others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people, and idiot boys with idiot boys. And people with no legs altogether? That's right. What kind of a world would that be? At least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. So you think you are just the same as all the other people with burnt faces? Just by what you look like, and everything's different. Everything's the same, but everything is different itself. यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें इंक्लूजन की ज़रूरत है। अगर एक तरह के लोगों को इकट्ठा कर देंगे तो दुनिया चलेगी कैसे? भगवान God has created this disparity, this kind of variety in God's world. अगर सिमिलैरिटी हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी भी तो रुक जाएगी, फीलिंग्स चलनी है, डिस्कॉर्ड भी ज़रूरी है, लड़ाई होगी तो प्यार भी होगा, इटपिट होगी तो सॉल्यूशंस भी आएंगे। अगर लड़ाई नहीं होगी तो क्लैशेस ही नहीं होंगे, तो नया लेवल कैसे निकल के आएगा? हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग. These are the ideal things that we all should do. I would like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains. ये देखो हुआ ना डेरी का ट्रांसफॉर्मेशन। उसको वो प्लेस भी पसंद आई, वो प्लेस जिसको वो भी रबिश कह रहा था, उसे वो गार्डन भी पसंद आया जिसको वो कह रहा था कि ये सब क्या है, उसको वो हाउस भी पसंद आया जिसको वो कहता है यहाँ तो कर्टन्स ही नहीं है, कोई प्रिवेसी नहीं है, एंड द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, बट दिस इजंट माइन। कहता पर ये मेरा नहीं है ना। Or Mr. Lamb says, everything is yours if you want it. What's mine is anybody's. So I could come here again. Even if you were out, I could come here. Certainly. You might find others here, of course. Oh, well, that needn't stop you. You needn't mind. It would stop them. They mind me. When they saw me here, look at my face and run. वो कहता तुम्हें कुछ नहीं रोकेगा, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। कहता नहीं, पर मैं यहाँ पे आ गया तो लोग नहीं आएंगे, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी कहीं ना कहीं डेरी के अंदर एक टसल चल रही है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर डेरी टू गिव वे टू द फियर ऑफ अदर्स हेट्रेड। आफ्टर ऑल इज जस्ट अ चाइल्ड, ही इज़ नॉट दैट मैच्योर। तो कहीं ना कहीं उसका जो परमानेंट फियर है, इट कम्स बैक। इस लाइन में यही इंपॉर्टेंट है।
I hope you're liking my classes. Thanks for being with me at eClasses with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe, and press the bell icon. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. They might not. You would have to take the risk, so would they? No, you wouldn't. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. I have not moved. No. When I go down the street, the kids shout "Lay me lamb," but still they come into the garden, into my house. It's a game. They're not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's why not. तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि क्यों डेरी का फेयर बारी बारी वापस आ रहा था. वही लेमी लैम के साथ भी हुआ था. लैम मिस्टर लैम को भी लेमी लैम बोला जाता था. उसका मजाक उड़ाते थे. फिर अगेन दो चिल्ड्रन यूज टू कम बैक टू हिम. अगेन दे यूज टू प्ले विद हिम इन हिज गार्डन. ही सेज मैं तो उनसे नहीं डरता, तो वो मुझसे क्यों डरें? आई एम ओपन माइंडेड. इफ दे हैव टू continue forgetting, being afraid of me, or even if they want to make fun of me, it's their choice. So we have to accept others for what they are. Even if they hate you, you should not react. And if you do that, you will become approachable. So we need not answer people back if they hate us. At least they will know that we do not hate them. At least this much good we can do. Did you get your leg blown off in the war? Certainly. How will you climb on a ladder and get the crab apples down? Oh, there are a lot of things I've learned to do, and plenty of time. Years I have taken it steady. I take it steady. If you fell and broke your neck and you could lie on the grass and die, if you were on your own. तो बेसिकली डेरी का अपना डर है ना कि वो अकेला और लोग उससे डरते हैं. वो यही डर मिस्टर लैम पे डाल रहा है और वो कहता है कि अगर अगर तुम गिर गए और तुम मर गए और अकेले तुम रहते हो तो क्या होगा? मिस्टर लैम से हाँ हो सकता है कुड. डैडी ने कहा यू सेड आई कुड हेल्प यू. स्टार्टिंग में उसने बोला था गिव मी अ हेल्पिंग हैंड. तो मिस्टर लैम कहते इफ यू वांट टू, बट माय मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम. इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स एंड आई एम 14 एंड दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम. अब यहाँ पे मैंने जितने भी हाईलाइट्स लगाए हैं वो एक आर्ग्यूमेंट है, सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट. उनको मैंने सिंगल कलर दिया. गिवन अ सिंगल कलर टू ऑल सेट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. तो उनको देखो. पीपल वरी, तो डेरी नेगेटिव है. वो कहता है पीपल फस, सिर्फ चिड़चिड़ करते हैं. नो वन इज वरीड. मिस्टर लैम कहते हैं ओके ठीक है तुम घर जाओ, गो बैक एंड टेल देम. डेरी कहता है इट्स 3 miles. मिस्टर लैम अब देखो पॉजिटिव क्या है, गो बैक एंड टेल देम. डेरी नेगेटिव इट्स 3 miles. मिस्टर लैम पॉजिटिव इट्स अ फाइन इवनिंग, यू गॉट लेग्स. क्या याद रखना है यहाँ पे? मिस्टर लैम के पास तो लेग्स नहीं है, उनको चलना पड़े, उनको टाइम ज़्यादा मिलेगा. तुम्हारे पास तो टांगे हैं, दौड़ो. तो वी शुड बी thankful and we should appreciate for what we have, and we should not be regretting for what we don't have. First be thankful, and if you are on the thankful side you will be able to accumulate more. Once I got home they would never let me come back. Once you got home you would never let yourself come back. वो कहता अगर तुम घर पे जाओ तो सही, खुश होके जाओ, घर को घर मान के जाओ, तो तुम्हारा मन ही नहीं करेगा वापस आने का. Daddy, you don't know. You don't know what I could do. No, only you know that. देखा कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट है. कहता तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ. हाँ, वो कहता है मैं नहीं जानता, सिर्फ तुम जानते हो, क्योंकि जो हमारी पावर्स हैं वो सिर्फ हमें पता होती हैं. If I chose, हाँ if you chose. I don't know everything boy. I can't tell you what to do. वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं बताना कि तुम्हें क्या करना है. This you have to decide. They tell me, do you have to agree? वो कहता है कि तो क्या जो लोग बताते हैं मानना ज़रूरी है. I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. Something just mine like this garden. I don't know what it is. You could find out. कहता मुझे कुछ चाहिए जो सिर्फ मेरा हो, जो किसी और का ना हो. बट वो क्या होगा? तो मिस्टर लैम फिर से उसे मोटिवेट करते हैं. फाइंड आउट. डैडी सेज हाउ. तो मिस्टर लैम का आंसर वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, sitting here or going there. I will have to see to the bees. Daddy, those are the people who come here. Do they talk to you? Ask you things? Mr. Lamb says, some do, some don't. I ask them. I like to learn. I don't believe in them. They don't think anybody ever comes.
You are here all by yourself and miserable, and no one would know if you are alive or dead, and nobody cares. और मिस्टर लैम इस नेगेटिव से बात का जवाब देते हैं, यू थिंक व्हाट यू प्लीज। तो वो कहता है कि क्या लोगों को फ़र्क भी पड़ता है कि तुम यहाँ पर हो? नोबडी बॉदर्स। और मिस्टर लैम कहता है ये तुम्हारी सोच है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें यही करना है लाइफ में। यू विल फाइंड पीपल who will think whatsoever about you, who will say whatsoever nonsense about you, and they will say that nonsense to everybody in the world. Purpose तुम्हारी वैल्यू गिराने के लिए, तुम्हारी बेइज्जती कराने के लिए, to belittle you in the world, but it is up to you what you have to agree to. आपने उनकी बोली हुई बात को मानना है, बिलीव करना है कि नहीं करना, उस पर रिएक्ट करना है कि नहीं करना, क्योंकि एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। आप जो एक्चुअली हो, दुनिया को बाद में टाइम लग जाएगा, लगना भी चाहिए, पता लग जाता है कि आप असल में क्या हो। ऑल राइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। अब किन के नेम्स? वो उन लोगों के नेम्स पूछ रहे हैं जो वो सोचता है कि कोई है भी तुम्हारी फिक्र करने वाला। व्हाट आर नेम्स? टॉम, डिक और हैरी। नाम तो कोई भी हो सकते हैं। आई एम ऑफ टू द बीच। वो कहता है मैं तो अपना काम करने पर ध्यान देता हूँ, मैं नहीं परवाह करता कि कौन मेरे बारे में केयर करता है कि नहीं करता। आई थिंक यू आर डाफ्ट, क्रेजी। मिस्टर लैम, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज। व्हाट फॉर? यू डोंट टॉक सेंस। गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक। तो मिस्टर लैम कहता है ये तुम मुझसे जो बहस कर रहे हो ना बेटा, इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे को बताना चाहते हो कि मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम वहाँ जाकर तुम अपने फैमिली को बोल ही नहीं सकते कि मुझे कहीं जाना है, कि मुझे कुछ मिला है, मुझे वो पाना है। तुम खुद नहीं डिसाइड कर सकते कि तुमने करना क्या है। इस बात को सुन के अब डेरी is going to get very rigid. You are like the others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you're frightened of it. And if you're not frightened, you'll think I am ugly as devil. I am a devil, don't you? Mr. Lamb does not reply. He has gone. वो जाके चला गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे एक्चुअली तो डेरी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसको काफ़ी चीज़ें पसंद आने लग गई हैं लाइफ में। He starts appreciating being alone. He starts appreciating the garden. और वो अपने आप से बोलता है no you don't, I like it here. कहता जो भी है ये जगह अच्छी है। I am going but I'll come back. You see, you wait, I can run. I haven't got a 10 leg, I'll be back. वो मिस्टर लैम को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, वापस आऊँगा, मेरे पास कोई 10 की लेग नहीं, 80 लेग है। वो अपनी स्ट्रेंथ रियलाइज करता है एंड ही गोज। अब डेरी अपने घर पहुंचने वाला है। मिस्टर लैम अपने आप को बोलता है देयर माई डियर्स, दैट्स यू सीन टू। हाँ यू नो, वी ऑल नो आई विल कम बैक, दे विल नेवर डू, दो नॉट देम नेवर डू कम बैक। कहता बहुत बच्चे बोलते हैं। वो मिस्टर लैम अब तक उसको ऑप्टिमिज्म दिखा रहे थे, बट रियलिटी ये थी कि उसके पास भी कोई बच्चा वापस दोबारा नहीं आता। रियलिटी यही है, इसलिए वो कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे थे कि डैडी उनके पास वापस आए एंड दे कैन बी गुड फ्रेंड्स। Mr. Lamb also is leading a life of loneliness, but he is a grown-up adult. He knows how to cope up with it. For Derry, there is whole lifespan left in front of him. तो रियलिटी क्या है? मिस्टर लैम्स ऑप्टिमिज्म वाज ओनली इंटेंडेड टू चेंज डेरी। वो उसको कुछ सिखाना चाहते थे। इन रियलिटी ही इज ऑल्सो इग्नोर्ड बाय सोसाइटी। नो वन कम्स बैक टू हिम, बट दैट डजंट स्टॉप हिम फ्रॉम स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो हमारे पास नेक्स्ट सीन आ गया। डेरी हैज रीच्ड हिज हाउस। मदर, you think I don't know about him? You think I haven't heard things? अब ऑलरेडी मिस्टर लैम के बारे में उल्टी सीधी बातें लोग बोलते हैं। डेरीज मदर स्कोल्ड्स डेरी। क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या मैं जानती नहीं क्यों उसको? कहाँ से आ रहे हो तुम? अब डेरी वही लाइंस बोलेगा जो उसको मिस्टर लैम ने बोली। आई हैव हाइलाइटेड देम। Those are Mr. Lamb's words. You shouldn't believe all you hear. Being told, warned, we've not lived here 3 months, but I know what there is to know and where you're not go back to there. What are you afraid of? What do you think he is? ये सारी बातें उसकी बोली हुई हैं मिस्टर लैम की। An old man with a 10 leg and he lives in a huge house without curtains and has a garden. I want to be there and sit and listen to things and listen and look. Listen to what? Bees singing, him talking, and he's got to say
got to say to you. Things that matter, things nobody else has ever said, things I want to think about. Then you stay here and do your thinking. You are best off here. Can you notice how Derry has changed? Derry is quoting Mr. Lamb. Derry has started liking Mr. Lamb. I hate it here. Mother says, you can't help the things you say. I forgive you. It is bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. Mother takes pity on his state. वो कहता हाँ तुम तो ऐसी बातें करोगे, तुम बेचारे हो. बेचारे में क्या सेंस आ रही है मदर की? ऐसा तुम्हारा फेस है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ. हाँ अब कुछ भी ऐसी बातें बोलूँगी तुम्हें फिर बुरा लग जाता है. मैं तुम्हारा भी क्या कसूर है? Derry, it's got nothing to do with my face and what I look like. I don't care about that, and it isn't important. It's what I think and feel and what I want to see and find out and hear. And I'm going back there only to help him with the crab apples, only to look at things and listen. But I'm going. You'll stop here. Oh, no. Because if I don't go back there, I'll never go anywhere in this world again. The door slams and he goes away. And I want the world. I want it. So we can see how Derry has transformed. Last scene, Mr. Lamb's garden. Mr. Lamb, he is standing on a ladder and he's plucking apples from the tree. Mr. Lamb, steady, that's it. And he plucks apples और भी apples गिरे. And again, that's it. और अचानक से आवाज़ आती है एक ब्रांच के टूटने की, पेड़ की डाली टूटती है, जो पौड़ी है, लैडर है, वो पीछे को गिरती है सीढ़ी और मिस्टर लैम गिर जाते हैं सीढ़ी से. और जब वो गिर जाते हैं, आपको याद होगा डैडी ने एक डायलॉग बोला था, इफ़ यू फॉल फ्रॉम द लैडर एंड यू ब्रेक योर नेक एंड यू फॉल डेड. यही कुछ होता है. तो डैडी ने जो बोला था वैसा ही कुछ हुआ. You see, I came back. You said I wouldn't, and they said, but I came back. I wanted. Mr. Lamb, Mr. Lamb, it's all right. You fell. I'm here. It's all right. तो डैडी फटाफट से उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है. I came back, Lemmy Lamb. I did come back. But Mr. Lamb has fallen down. He has broken his neck. He is dead. But before he died, he taught Derry to live his life. So what unites the two? दोनों में कॉमन क्या है? फिजिकल डिसेबिलिटी. दोनों में कॉमन है फिजिकल डिसेबिलिटी और रिएक्शन, पीपल्स एपैथी टू इट, द एम्पैथेटिक फीलिंग. वो एक दूसरे का दर्द समझते हैं. बोथ हैव फेस्ड द सेम प्रॉब्लम. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन देयर एटीट्यूड. हमें ये भी देखना है क्या डिफरेंस उनके एटीट्यूड में. मिस्टर लैम्ब इज पॉजिटिव एंड डेरी इज अ पेसिमिस्ट. दोनों का परसेप्शन जो है वो लाइफ के लिए कितना डिफरेंट है. हाँ, हो सकता है मिस्टर लैम्ब इज एज्ड एंड ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड. ही हैज़ मोर ह्यूमन इंटरेक्शंस, so he could guide the little boy, but definitely the thing common between the two is physical disability. So that was all for complete reading and explanation of the chapter, and I have also given you complete explanation through points in the form of summary, in the form of a flowchart or a table. Make the most of my videos and excel in English. This chapter is very important. It is surely going to be tested in exams. So all the best, keep excelling and have a great score.